زندگی بسر کر رہے ہیں، جو لا علمی والی بات ہے، جہالت والی بات ہے، وہ دور چلی گئی۔ اب الحمدللہ علم موجود ہے، تعلیم موجود ہے، ہر گھر کے اندر پڑھے ہوئے افراد، بیٹیاں بیٹے موجود ہیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ہر غریب جو ہے، جس کے گھر روٹی کا سسٹم ہے یہ نہیں ہے، اس کے گھر کے اندر بھی 40-50 ہزار کے موبائل ہے اور نیٹ چل رہا ہے، تو اس سے معلومات مل رہی ہیں ہر قسم کی۔ تو اصل المیہ جو اب ہے وہ ہے عمل کا معاملہ ہے، علم کا معاملہ نہیں۔ اب ہم علم ہوتے ہوئے بھی جہالت کے رستے پہ چلیں، علم کے ہوتے ہوئے بھی، پتہ ہونے کے باوجود بھی گناہوں کے راستے پہ چلے، پھر محاسبہ بڑا تنگ ہو جائے گا۔ جاننے کے بعد جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا بھی ڈبل ہو جاتی ہے، کہ نہ جانے میں ہو جائے تو الحمدللہ ابھی علم کی کمی نہیں ہے۔ پہلے بس کسی ساتھی نے 2-4 صورتیں یاد کر لی، وہ امام ہوتا، مسجدوں کے اندر نظام چلتے۔ اب تو ابھی 2-4 سال کے بعد ہی ہوگا کہ ہر دیہاتوں کے محلے کی چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے اندر بھی مفتی امامت کروائیں گے۔ اتنا علم ہے، مگر اصل معاملہ عمل کا ہے۔ اللہ سے دعا ہے میرے مولا ہمیں عمل کی توفیق دے۔ باقی میرے بھائیو، ہم نے اپنے آپ کو جان کے تبدیل کرنا ہے کہ اللہ کے کیا احکام ہیں، اور مرنے کے بعد واقعہ یہ معاملات بننے والے ہیں۔ تو رب کریم نے قرآن کے اندر سورۃ مطففین کے اندر جو نقشہ کھینچا ہے وہ انسان کے اعمال کا ہے، کہ مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا 2 ٹھکانے ہیں، 2 جگہ ہے، ایک ہے علیین، دوسرا سجین۔ تو پہلے رب کریم نے سورۃ مطففین کے اندر سجین لوگوں کا تذکرہ کیا، کہ وہ تذکرہ کیا کہ سجین کے اندر کن لوگوں کے اعمال جمع ہوں گے۔ وہ اس ریکارڈ ہوم کے اندر جس کے دروازے بند ہوں گے، کوئی ریکارڈ چوری نہیں کر سکے گا، اللہ کا پروگرام ہیک نہیں ہوگا، کوئی ہینگ نہیں ہوگا، کوئی اسے چوری نہیں کر سکے گا، کوئی چھین نہیں سکے گا، کوئی تبدیل نہیں کر سکے گا، رشوت دے کے لائن چینج نہیں ہوگی، کیس کی تاریخ آگے نہیں ہوگی۔ اللہ رب کریم نے فرمایا وہ مقام سجین کے اندر جن کے نام اعمال بند ہو جائیں گے، ان کا فیصلہ ٹھکانہ جہنم کا اعلان ہو جائے گا۔ کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکے گی، فوجیں اس سجین مقام سے چیزیں اٹھا نہیں سکیں گی، کوئی حملہ آور جو ہے وہاں سے نکال نہیں سکے گا۔ رب کریم نے فرمایا کلا ان کتاب الفجار۔ یہاں پہ میرے بھائیو ہم نے ایک مخالطہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور بس ہے، جو مرضی کریں، مرضی ہے نماز پڑھے، مرضی ہے نہ پڑھے۔ میرے بھائیو یہ میرا قصہ نہیں، میری بات نہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ میری تو ڈیوٹی ہے میرے اعمال کو نہ دیکھنا، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ ہزاروں عیب ہوں گے مبلغ کے اندر، ہزاروں باتیں ہوں گی کہنے والے کے اندر، آپ نے مبلغ کو نہیں دیکھنا، آپ نے معلم کو نہیں دیکھنا، آپ نے جو سنایا جا رہا ہے کلام اس ذات کو دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ الفاظ پہ غور کرنا ہے، کافر کا تذکرہ نہیں ہے۔ بھی ایک بندے نے تو کلمہ نہیں پڑھا جی، یہ ان کے لیے باتیں ہیں، ہم تو محمد مصطفیٰ کی امتی ہیں، ہمارے لیے قرآن نہیں۔ رب کریم نے کیا فرمایا؟ کلا ان کتاب الفجار، جو فجار ہوں گے، گنہگار ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے، ان کی کتاب جو ہے، ان کے جو نامہ اعمال جو ہے لفی سجین، وہ سجین کے مقام میں ہوں گے۔ یہاں پہ کافر نہیں کہا اللہ نے، بغیر مسلم ہے، بتوں کو پوجنے والے ہیں، کافر ہیں، ان کا ایسا حساب ہوگا۔ رب کریم نے فرمایا کلا ان کتاب الفجار، فاسق و فاجر، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اللہ سے بغاوت کی، اس کے بعد میرے نبی کے طریقوں سے بغاوت کی اور ظلم و جبر کیے، یزید بنا، یزید کا ساتھی بنا، ایسے ظالموں کے لیے رب کریم نے فرمایا لفی سجین،
उनका मकाम सिज्जीन में होगा। वमा अदराका मा सिज्जीन, तुम क्या जानो सिज्जीन क्या है। किताब मरकूम, रब करीम ने फरमाया वो तुम्हारे और नामा अमाल लिखे हुए हैं, वो लोगों की बातें लिखी हुई हैं, लोगों के मामा अमाल जो लिखे हुए हैं, मेरे तेरे जुल्म लिखे हुए हैं, मेरे तेरे गुनाह लिखे हुए हैं, मेरे तेरे धोखे लिखे हुए हैं, मेरे तेरी लोगों का दिल आजारी लिखी हुई है, मेरी और तेरी दीन से दूरी लिखी हुई है। रब करीम ने फरमाया हाँ वैलुल लिल मुकज्जिबीन, झुटलाने वालों के लिए हलाकत है। ये जहान है, आगे पता नहीं किसने देखा है, बस ये तो टोपी डरामा है, बस हम मरेंगे सीधा जन्नत में चले जाएंगे। आखिरत को झुटलाया हुआ ओ कौन देखा है, किसने मरना है बस खत्म हो जाना। नहीं मेरे भाइयों, रब करीम ने फरमाया जिसने इन बातों को भी झुटलाया वो भी हिलाक हो गया। मेरे भाइयों, झुटलाने के दो तरीके हैं, एक जबान से झुटलाना, एक आमाल से झुटलाना। अजान हुई है, एक से दावत दी गई भाई नमाज पढ़ ले, मैं नहीं पढ़नी, जा दौड़ पड़े। मैंने देखी है नमाजें, जाओ कुछ नहीं मिलता नमाजों में, देखे सारे नमाजी, सब नमाजी हरामखोरी करते हैं, सब नमाजी ऐसे करते हैं। तो ऐसे अल्फाज बोल देने, इनकार कर देना, ये तेरी जबान से ये इनकार हो गया, झुटलाना हो गया। एक अपने अमल से, अजान हुई, एक ने जबान से ना इनकार करके ना गया, दूसरा अपने अमल से इनकार करके नहीं गया। रोजे का हुक्म हुआ, एक ने कह दिया रोजे है ही कुछ नहीं, दूसरे ने रखे नहीं है तो दोनों बराबर, है तो दोनों फेल। मगर चलो ये है, अगर किसी ने अपने अमल से थोड़ी सी कमी कोताही की है तो किसी वक्त वो अल्लाह से माफी मांगे तो अल्लाह ताला रहमत फरमा देते हैं। मगर अपनी जबान से बोलने से अल्फाज पहले सोच समझ के बोलना। रब करीम ने फरमाया वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, हलाकत है, हिलाक हो गए। ये तो दुनिया के अंदर जो हिलाक हुआ वो बर्बाद हो गया, जो क्यामत में हिलाक हुआ उसका क्या बनेगा। रब करीम ने फरमाया वो हलाक हो गए जिन्होंने झुटलाया। अल्लज़ी युकज़्ज़िबून बियौमिद्दीन, जो लोग क्यामत के दिन, भाइयों हम दुनिया में जिंदा हैं, खुदा की कसम ये रोशनियों का जहान और है, ये कब्रिस्तान के अंधेरों का जहान और है, ये शहरों में चमकती हुई कुमकुमे और लाइटें ये जहान और है, जो मिट्टी के नीचे कब्र में चले जाना वो जहान और है। उसे याद रखना, इन रानाइयों रोशनियों के अंदर, इन कुमकुमों के अंदर, इन खूबसूरत इमारतों के अंदर कहीं उस कब्र की तारीकी को भूल न जाना, उस कब्र के अंधेरे को भूल न जाना। इस दुनिया से मुंतकिल होने को, इंतकाल को, मरना होता है, ऐलान होता है फला आदमी इंतकाल कर गया, दुनिया से मुंतकिल होके आगे चला गया, उसका ना जिंदगी जिंदों से निकल के मुर्दों में लिख दी, मुंतकिल हो गया, इंतकाल हो गया। जैसे हम जमीन इंतकाल करते हैं, ये मुंतकिल होना ही होना है, भूलना नहीं है। शहरों में चले जाओ, शाम के बाद ऐसी रोशनियां, गहमा गहमी गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, वो जहान पता ही नहीं है भी कोई आखिर मामला है। वहीं एक अस्पताल शहर में बना हुआ है, आप वहां से शहर से निकल के अस्पताल की दीवार के अंदर जब दाखिल होंगे, आईसीयू में चले जाओ और इमरजेंसी में जाके देख लो, वहां जहान और है, वहां लोग अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं, वहां तड़प रहे हैं आईसीयू के अंदर, इमरजेंसी के अंदर है वही एक शहर। यही जिंदगी की मिसाल है, ये जहां बैठे हैं रोशनियां चल रही हैं, कालीन बिछे हुए हैं, जब निकलेंगे कब्रिस्तान की तारीकी में वो जहान और है। भाइयों भूलने वाली बात नहीं है। रब करीम ने इरशाद फरमाया, फरमाते वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम। हाँ रब करीम ने फरमाया कुल्लु मुअतदिन असीम, जो ज्यादती करने वाले, मुअतदिन ज्यादती हद से तजावज करने वाले, असीम और गुनहगार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह देता गया, तू आगे बढ़ता गया, अल्लाह की रहमतें आती रही, तू उन्हें समेटने की बजाय सरकशी में चलता रहा। अल्लाह ने तुझे बचपन से जवानी दी, जब जवान हुआ नाफरमानी की, फिर अल्लाह ने तुझे और तकड़ा किया, तू गुनाहों में और बढ़ता चला गया, फिर अल्लाह ने तेरे रिज़्क में इजाफा किया, तेरी गरीबी को तो नगरी में तब्दील किया, तेरे घर में चूल्हा जलाया, कच्चे से पक्के मकान बनवाए, और फिर क्या हुआ, तेरे साइकिल से अल्लाह ने बाइक दी, गाड़ियां दी, मगर बजाय शुक्र अदा करने के नाफरमानियों में बढ़ते चले गए।
नाफरमानियों में बढ़ते चले गए, तू देता गया, मेरी अगली नजर सितारों पे, मैं अगली नजर आगे आगे देखता चला गया, अल्लाह को भूल गया, अल्लाह रब्बे कायनात की नाफरमानियों में लगा रहा। ऐसे ही है ना भाई, मैं दुआ मांगता हूँ अल्लाह मेरा बेटा कामयाब हो जाए, मेरे कच्चे से पक्के बन जाए, मुझे सवारी अच्छी मिल जाए, मेरी मईशत बेहतर हो जाए, अल्लाह फसलों में बरकत देंगे, अल्लाह ने दी है और रब्बे कायनात कच्चे से पक्के बनवा रहा है, बच्चों को रोजगार मिल गया, बजाय इसके शुक्र अदा करें हमने जुल्म पे आ गए, तअद्दी पे आ गए, थोड़े से पैसे हुए चौधरी बन गया, हुक्का बाहर निकाल लिया, आओ जी इलेक्शन की बातें करते हैं, मुझे भी चौधरी तस्लीम कर लो। भाइयों अल्लाह ने दिया उसका शुक्र अदा कर। रब्बे करीम ने फरमाया वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम इज़ा तुतला अलैहि आयातुना। असल बात जो है, रब्बे करीम ने फरमाया जब उनके सामने अल्लाह की आयत पढ़ी जाती हैं, कालू असातिरुल अव्वलीन, यार शुरू तो ही मौलवियों ने ऐसी बातें की हैं, शुरू से ही हम तो सुनते आए हैं, शुरू से यही कुछ है। भाइयों हमने माना कब है, हमने सुना कब है, हम झुके कब है? ये तो मेरी और तेरी चंद दिन की जिंदगी है। खुदा की कसम देखो बदलो हालात को। और रब्बे करीम ने फरमाया जमीन में सैर करो, दुनिया कैसे सिसक रही है, कुछ तो मौत तलब कर रहे हैं, कुछ कैदों के अंदर हैं, पाबंदे सलासल है, उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, कुछ हॉस्पिटलों में आईसीयू में हैं जो अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे, हत्ता कि ये कह रहे अल्लाह मौत दे देने। आपने भी देखा होगा जब मरीज लंबा मर्ज में चला जाए ना, घर वाले मोहल्ले वाले क्या दुआ मांगते हैं, अल्लाह हुन पर्दे रख ला, अल्लाह पर, हालांकि वो इंसान है, उसके बतन से बेटे पैदा हुए, बेटियां पैदा हुई, उसने घर बनाया, उसने तेरा बाग लगाया, उसने तुझे जमीनें बख्शी, एक वक्त आएगा तू खुद दुआ मांगेगा अल्लाह पर्दे रख ले, पर्दे रख ले। ऐसा मामला भी बनता है। इससे पहले ऐसा मामला बने कि मेरे और तेरे पर्दे की दुआएं की जाएं, अल्लाह बड़ा लंबा हो गया, बस अल्लाह हुन खैर कर, हुन ले जा, अल्लाह पर्दे रख ले। भाइयों होना है, ये होना है। रब्बे करीम ने फरमाया ये ना कहना काला असातिरुल अव्वलीन, नहीं ये किस्से कहानियां नहीं है, ये अल्लाह का कुरान है, हकीकत है, ये होने वाला है। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा यक्सिबून। बड़ी अहम बात, रब्बे करीम ने फरमाया बल्कि हाँ 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 लोगो सुनो तो सही, कौन ऐसी बातें करता है, कौन अजानों के जवाब में झुकता नहीं, कौन बुलंद आवाजों की तरफ आता नहीं, कौन अल्लाह के बुलावे पे आता नहीं, कौन नाफरमानियों में बढ़ता जा रहा है। रब्बे करीम ने फरमाया कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा यक्सिबून, उसके गुनाहों की वजह से उसके दिल के ऊपर जंग लग गया, उसके गुनाहों की वजह से उसके दिलों पे जंग लग गया। ऐसे ही है, हमें नेकी और बुराई की तमीज ही नहीं है, हमें महसूस ही नहीं है कि ये बुरा है, ये गुनाह है, ये अच्छा है। रब्बे करीम ने फरमाया उनके दिलों पे जंग लग गया है। भाइयों जिस तरह इस्तेमाल के बाद चीजें खराब हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं, हाँ हाँ हो जाए अगर गुनाह, तो नबी अकरम ने फरमाया जब गुनाह होता है तो दिल के ऊपर स्याही का नुक्ता लगता है, जंग लगता है, गुनाह करते चले जाओ हत्ता के दिल स्याह होता चला जाएगा। उसकी सफाई का एक ही हल है, अल्लाह का जिक्र है और अल्लाह से माफी है। जब कोई आदमी माफी मांगता है अल्लाह दिल साफ कर देते हैं, मगर हम जब मांगते नहीं गुनाह करते चले जाते हैं, उलमा फरमाते हैं दिल मुर्दा हो जाते। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, रब्बे करीम ने फरमाया कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा यक्सिबून, उनके कसबों की वजह से, उनके गुनाहों की वजह से, उनकी लोगों की गाली गलोच की वजह से उनके दिल स्याह हो गए। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमज़िल्ला महजुबून, याद रखना वो क़यामत के दिन अल्लाह के दीदार से महरूम हो जाएंगे। जो अल्लाह के दीदार से महरूम हो गया वो बर्बाद हो गया। नबी अकरम ने फरमाया जन्नतियों को सबसे जो मजीद लतीफ खूबसूरत लम्हा और सबसे लतीफ नेमत जो मिलेगी वो अल्लाह का दीदार होगा। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। हाँ हाँ, अल्लाह रब्बी करीम ने इरशाद फरमाया वो क़यामत के दिन फरमाते हैं कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमज़िन लमहजुबून, वो अपने रब के दीदार से महरूम हो जाएंगे। सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे फिर इन्हें जहन्नम के अंदर कैद कर दो और जला दो।
کیوں کیوں کیوں؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، اس لیے تم دنیا میں تکذیب کرتے تھے، منمانیاں کرتے تھے، اللہ سے بغاوت کا اعلان کرتے تھے، باغی بنے ہوئے ہیں نا۔ ایک رب ہمیں بلا رہا ہے، ہم آ نہیں رہے، اللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے، ہم سن نہیں رہے، اللہ ہمیں پکار رہا ہے، ہم آ نہیں رہے، باغی ہیں نا، ہم اپنی مرضیوں پہ لگے ہوئے نا، باغی بغاوت میں لگے ہوئے نا۔ آخر یہ کب تک بغاوت چلے گی؟ ایک دن آئے گا میری اور تیری کمر جھکنے والی ہے، پھر یہاں سے قبرستان میں منتقل ہونا ہے۔ اللہ سے دعا ہے تو انشاءاللہ کل عرض کریں گے، یہ تو کتاب سجین والے، کل انشاءاللہ عرض کریں گے کتاب علیین والے۔ تو یہ دو مقام ہیں، علیین اور سجین، جہاں پہ ہمارے اعمال جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اعمال علیین والے بنا دیں۔ وآخر دعوانا